बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, देर किस बात की, क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हम इस क्लास में क्या नया जानने वाले हैं। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस यूजिंग MS Access 2016। लॉग इन टू द चैप्टर डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MS Access, starting MS Access 2016. Components of Access window, creating a new table in datasheet view, modifying table design, advantages of DBMS, MS Access database objects, creating blank database, understanding data types and field properties, creating a new table in design view, adding records to a table. Unlock the mind, complete the following terms. बच्चों, आपको इनको कंप्लीट करना है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। Data is an important factor to manage our routine activities. However, data in its raw and unprocessed form is meaningless. But when such data is converted into information, it can be easily interpreted. बच्चों, डाटा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी जो रूटीन होती है उसको अच्छे से मैनेज करता है, हमारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। डाटा अगर सही फॉर्म में हो तो उसका इस्तेमाल हम कई जगहों पर करते हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन के काम आता है। लेकिन वही डाटा अगर वो अनप्रोसेस्ड हो तो वो मीनिंगलेस होता है। Hence, it is essential to provide a structure to the available data and organize it, which can be achieved with the help of a database. It enables us to edit, store, manage and retrieve the information easily and quickly as and when required. तो बच्चों, ये ज़रूरी है कि जो डाटा अवेलेबल है हमारे पास में उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए और उसको डेटाबेस में रखा जाए ताकि जब भी हम उसको एडिट करें, स्टोर करें, मैनेज कर सके, रिट्रीव कर सके उस इंफॉर्मेशन को ईजिली और क्विकली जब भी उसकी ज़रूरत हो तो। In this chapter, we will learn about the basic concepts related to the database that will enable us to cultivate a better understanding of MS Access, the Relational Database Management System RDBMS from the Microsoft Office Suite. बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं डेटाबेस से उससे रिलेटेड। डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. A database is an organized collection of information that can easily be accessed, managed and updated. बच्चों, डेटाबेस जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का जिसे इजीली एक्सेस किया जाता है, मैनेज किया जाता है और अपडेट किया जाता है। The overall purpose of a database is to record and maintain information that is relevant to the organization and necessary for making decisions. बच्चों, ओवरऑल जो पर्पस होता है डेटाबेस का वो होता है कि वो रिकॉर्ड रख सके, मेंटेन कर सके इंफॉर्मेशन को, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए ज़रूरी होता है, जिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है उनके लिए डिसीजंस बना सके। सम एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस इंक्लूडिंग कस्टमर फाइल्स, एम्प्लॉय रोस्टर्स, इक्विपमेंट इन्वेंटरीज एंड सेल्स ट्रांजैक्शंस. The software program that allow us to create, access, update and query a database is known as Database Management System DBMS. बच्चों, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो हमें अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, अपडेट करने के लिए, उसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS. The object of DBMS is to provide a convenient and effective method of defining, storing and retrieving the information contained in the database. DBMS and be based on different models. बच्चों, DBMS जो है वो different models पे based होता है। अब जानते हैं इसके advantages के बारे में। Advantages of DBMS. There are several advantages of DBMS. Some of them are given below. Easy sharing of data. DBMS allows users with authority to share the data in the database with multiple users. For example, in an airline reservation system, a database is maintained and stored certainly for the reservation and the cancellation of air tickets. बच्चों, DBMS अथॉरिटी को अलाउ करता है कि वो डाटा को शेयर कर सके, उसके डाटाबेस को मल्टीपल यूज़र्स के साथ में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एयरलाइन में कोई रिजर्वेशन
करते हैं रिजर्वेशन के सिस्टम के थ्रू, हम उसमें सारा का सारा डाटा मेंटेन होता है, स्टोर होता है। यानी टिकट, एयर टिकट का जो कैंसिलेशन होता है, रिजर्वेशन होता है, सब सारा का सारा डाटाबेस उसमें मौजूद होता है। फैसिलिटेट्स डाटा सर्चिंग। Searching and retrieving of data is very easy in DBMS systems. The need to write separate program for each of the search is eliminated as in the case with a traditional file-based approach. In DBMS, we can write small queries to search for multiple information at a time from the data from DB servers. बच्चों, DBMS में हम क्या करते हैं, हम स्मॉल से स्मॉल क्वेरीज को सर्च करते हैं और उससे मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक ही बार में हमें मिल जाता है। रिडक्शन ऑफ डाटा इनकंसिस्टेंसी। Most of the DBMS are designed to avoid data inconsistency, which is a result of data redundancy. When there are two files containing the same data and one file is updated while the other file is not, data become inconsistent. By storing the data in a single place, DBMS avoid data inconsistency. बच्चों, मान लीजिए कि जब भी हमारे पास में दो सेम फाइल हो जिनमें सेम डाटा मौजूद हो और एक फाइल अपडेटेड हो और दूसरा फाइल अपडेटेड ना हो, इसका मतलब है जो डाटा है वो इनकंसिस्टेंट हो चुका है। मेंटेनिंग डाटा स्टैंडर्ड्स। इन अ DBMS, data is stored in a standard format. Standards may relate to the naming of data, format of data, structure of data, etc. Standardized data facilitates in a data interchange or migration between systems. बच्चों, DBMS में क्या होता है, जो डाटा स्टोर होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि जो डाटा होता है उसका नाम, उसका फॉर्मेट, उसका स्ट्रक्चर, सभी चीज़ें हों। Enhanced data security. One of the most important advantages of DBMS is data security. बच्चों, ये सबसे one of the most advantage इसको माना जाता है। In DBMS, user IDs can be created with various levels of security. Users have limited rights and permissions. Only authorized users can access the data. Some may have the privilege of changing the data while others can only view the data. बच्चों, इसमें क्या होता है कि यूज़र की जो आईडी होती है वो बहुत सारे सिक्योरिटी लेवल, यानी बहुत सारे लेवल्स के साथ में, सिक्योरिटी लेवल्स के साथ में सेव की होती है, बनी हुई होती है। इसलिए यूज़र्स के पास में राइट और परमिशन जो होता है वो लिमिटेड होता है। केवल जो ऑथराइज्ड लोग होते हैं उन्हीं के पास में एक्सेस और डाटा दोनों मौजूद होता है। डाटा बैकअप एंड रिकवरी। DBMS provide a strong framework for data backup. Users are not required to back up them data periodically and manually. It is automatically taken care by DBMS. Moreover, in the case of all server crash, DBMS restores the database to its previous condition. बच्चों, DBMS प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क डाटा बैकअप का। मान लीजिए कि जो यूज़र्स हैं वो अगर अपना डाटा खो चुके हैं तो वो खुद से डाटा अपना वापस नहीं ला सकते, बल्कि जो अथॉरिटी होती है यानी जो DBMS है वो क्रैश हुए सर्वर में जो डाटा होता है केवल वो वही उसे रिस्टोर कर सकता है और उसे प्रीवियस कंडीशन में ला सकता है। फैक्टोपीडिया। द रिलेशनल मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय E.F. Corded in 1970 as a way to make database management systems more independent of any particular application. In this method, the data are organized in tables and different tables are related to one another for sharing the data. बच्चों, जो रिलेशनल मॉडल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 में E.F. कॉर्ड द्वारा, और इस मेथड के द्वारा जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज किया गया था टेबल्स में, डिफरेंट टेबल्स में रिलेट किया गया था एक से दूसरे टेबल्स के बीच में, और ये डाटा उन्हीं के साथ में शेयर किया गया था। अब आते हैं MS Access पर। MS Access is the most popular relational database management DBMS that comes as an integral part of the MS Office suite of applications. It is a powerful GUI based RDBMS using which we can create customized database for self-use or for use by small and medium sized business. अगर हम स्मॉल या मीडियम साइज्ड बिजनेस चाहते हैं तो हम
सेल्फ यूज़ के लिए कस्टमाइज डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इसमें हमारी हेल्प करता है GUI बेस्ड RDBMS. It enables them to store, manage and utilize their data in an efficient manner. Here we will learn about the Microsoft Access 2016. चलिए अब हम जानते हैं कि Microsoft Access 2016 के बारे में और अच्छे से कैसे जान सकते हैं. MS Access Database Objects. MS Access objects refer to building blocks of database. These objects are required for viewing, processing or updating data stored in the database. We can view all these objects in the navigation pane in Access. Let us know about these objects of a database. बच्चों जो MS Access Objects होता है ये रेफर है बिल्डिंग ब्लॉक्स, डेटाबेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स को. चलिए इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में, डाटा बेस के ऑब्जेक्ट्स के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं. जैसे पहला है टेबल. अ टेबल इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द डाटाबेस वेयर द एक्चुअल डाटा इज स्टोर्ड. बच्चों जो टेबल है वो मेन ऑब्जेक्ट है डाटाबेस का, क्योंकि जो एक्चुअल डाटा है इसी में स्टोर रहता है. MS Access stores the related entries in its row. This row is called a record. इस रो को रिकॉर्ड कहते हैं और इसमें जितने भी MS Access से स्टोर जो रिलेटेड एंट्रीज होती है वो इस रो में सारे सेव होते हैं. ईच टाइप ऑफ डिटेल इन अ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन इट्स कॉलम नोन एज फील्ड. हर तरीके के जो डिटेल है वो स्टोर रहते हैं इन कॉलम्स में, जिसे फील्ड्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, in a table, the names of all the students of our class can be stored in one field with the name as name, and all the data entries under the field names, age, address together form the record of a particular student. मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने एक टेबल में स्टूडेंट्स के नाम, उनके क्लास, उनका फील्ड, उनकी एज सब लिखा हो रिकॉर्ड के लिए पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का. क्वेरी. A database query is a request to access data from a database to manipulate it or retrieve it. बच्चों डेटाबेस क्वेरी जो है वो एक तरीके का रिक्वेस्ट है ताकि डाटा को एक्सेस किया जाए, डेटाबेस से मैनिपुलेट किया जाए या रिट्रीव किया जाए. द क्वेरी इज यूज्ड टू व्यू, चेंज, समराइज एंड एनालाइज स्पेसिफिक डाटा इन डिफरेंट वेज. MS Access प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेरीज. बहुत सारे तरीके की क्वेरीज जो है MS Access प्रोवाइड करती है. कौन कौन से? सेलेक्ट, पैरामीटर, क्रॉस टैब, एक्शन एंड SQL, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्वेरी. अब आते हैं फॉर्म पर. फॉर्म इज द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा इन टेबल एंड क्वेरी. अ फॉर्म हैज एन अट्रैक्टिव interface that accepts data from the user and forwards it to the corresponding table or query. बच्चों फॉर्म जो है एक अट्रैक्टिव इंटरफेस है जो यूज़र से डाटा को एक्सेप्ट करती है और फिर इसे फॉरवर्ड करती है कॉरस्पॉन्डिंग टेबल या क्वेरी तक. रिपोर्ट. रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेस और समराइज द डाटा. वी कैन प्रिंट इट और व्यू इट ऑन द स्क्रीन. इट इज मेनली यूज्ड टू एनालाइज द डाटा. A report consists of reports, design and underlying record source. Records contained in tables. बच्चों रिपोर्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, समराइज करती है डाटा को और ये प्रिंट करती है, व्यू करती है इसे स्क्रीन पर. मैक्रो. मैक्रो इज अ structured definition of one or more actions that we want access to perform in response to a defined event. Macro is a script for doing some specific tasks. Macros are created by choosing from a list of macro actions. Modules. Modules are standalone objects containing functions that can be called from anywhere in the application, or they can be directly associated with a form or a report to respond to events on the associated form or report. Modules are written in Visual Basic for applications. Modules लिखा गया है किसके लिए? विजुअल बेसिक्स के लिए, एप्लीकेशन के. स्टार्टिंग MS Access 2016. टू स्टार्ट MS Access, follow the given steps. Step 1, click on the start button. Step 2, click on Access 2016 option. The Microsoft Access Startup screen appears. It allows us to create a new database, open an existing data, search for online templates, etc. बच्चों
MS एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए स्टेप 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर। स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे एक्सेस 2016 ऑप्शन पर। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्टअप स्क्रीन अपीयर होगा, जो हमें अलाउ करेगा कि हम कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट करें या जो एग्जिस्टिंग डाटा है, पहले से एग्जिस्टिंग जो डाटा है उसे हम खोलें। क्रिएटिंग ब्लैंक डेटाबेस। Our database can be created using blank desktop database option, which includes no present design. Using this option, a new database can be created according to the user's requirement. बच्चों, एक database जिसे create किया गया है किसका इस्तेमाल करके? Blank desktop database option को इस्तेमाल करके. To create a blank database in Access, follow the given steps. Step 1. Select blank desktop database option from the right pane of the Microsoft Access start screen. The blank desktop database dialog box will appear in front of you. Step 2. Enter the desired name for the new database in the file name text box. Step 3. Click on the browse button next to the file name text book to choose the location for saving the database. Step 4. Click the create button to create the new database, and a blank database gets created with the .accdb extension. Access will create the database with an empty table in it named as table 1. बच्चों, अगर हमें ब्लैंक डेटाबेस एक्सेस में क्रिएट करना है, स्टेप 1 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस के ऑप्शन पे। उसके बाद राइट पेन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्ट स्क्रीन नज़र आएगा हमें, जिससे सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस और फिर ब्लैंक डेस्कटॉप डाटा बॉक्स का जो डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर होगा। स्टेप 2 में जाएंगे, एंटर करेंगे हमारा कोई भी डिज़ायर्ड नेम जो हम न्यू डेटाबेस यानी फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में डालना चाहते हैं। स्टेप 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे ब्राउज बटन को, नेक्स्ट में फाइल नेम टेक्स्ट बुक, फिर चूज़ करेंगे लोकेशन जहाँ भी हम उसे सेव करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर डेटाबेस को। स्टेप 4 में जाएंगे, क्लिक करेंगे क्रिएट बटन को न्यू डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। एक ब्लैंक डेटाबेस अब क्रिएट हो चुका है, किसके साथ में? .accdb एक्सटेंशन के साथ में। अब एक्सेस जो है उसने एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लिया है जिसमें एम्प्टी टेबल्स हैं और नेम दिया गया है टेबल 1। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेस विंडो। For working in MS Access, we must understand its interface. बच्चों, अगर हम MS Access में वर्क कर रहे हैं तो हमें इसके इंटरफेस को भी जानना होगा। टाइटल बार, it displays the name of the current database. There are 3 buttons on the right side of the title bar, which are used to minimize, maximize, and restore and close the access window. बच्चों, ये करंट डेटाबेस को डिस्प्ले करता है उसके नाम को। 3 बटन होते हैं, कौन कौन से? राइट साइड, टाइटल बार जिसका इस्तेमाल किया जाता है मिनिमाइज के लिए, मैक्सिमाइज के लिए, रिस्टोर करने के लिए, क्लोज करने के लिए और एक्सेस विंडो के लिए। बच्चों, अब आ जाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पर। इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेस विंडो. It contains the most frequently used command buttons. By default, it has 3 buttons which are save, undo and redo. बच्चों, ये एक्सेस विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली इसका इस्तेमाल जो किया जाता है कमांड बटन के लिए, बट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 बटन भी होते हैं जिसका इस्तेमाल सेव, अंडो और रीडो करने के लिए किया जाता है। फाइल टैब, it displays the backstage view of file commands such as new, open and close. इसमें ये तीनों कमांड्स होते हैं। Tabs, it contains buttons and other controls for working with data. अगर आप डाटा पे काम कर रहे हैं तो ये बटन और भी कंट्रोल्स देता है। Ribbon, it displays groups of related commands in tabs. Each tab has shortcut button to perform the specific task. बच्चों, इसके अंदर रिलेटेड कमांड्स होते हैं टैब्स के और जितने भी शॉर्टकट बटन होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। नेविगेशन पेन, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो. इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज्ड इन द डेटाबेस सच एज टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. बच्चों, ये एक्सेस टूल बार के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और इसमें डेटाबेस, टेबल्स, क्वेरीज,
फॉर्म्स और रिपोर्ट्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। Navigation buttons. It helps in navigating through the records. The navigation buttons display the current record number in an object. Object tab. It provides access to all open database objects such as tables, reports and forms. Clicking on any tab displays the contents in the work area. To close the current tab, click on the cross button on the right end of the bar. बच्चों, ये जितने भी ओपन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे टेबल्स, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स होते हैं, वो सभी को ये एक्सेस करता है। और अगर आप किसी भी करंट टैब को क्लोज करना चाहते हैं तो क्रॉस बटन मौजूद होता है राइट एंड में बार के। व्यू बटन्स. These buttons are used to switch between various views of the selected objects. Record selector. It displays the current record number and navigates to other records. अब आते हैं स्टेटस बार पर. It displays the information about the current object. Current object के information को ये बताता है. Understanding data types and field properties. Data types. The most important property for a field is its data type. A field's data type determines what kind of data it can store. बच्चों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डाटा टाइप की, फील्ड के लिए होती है उसकी डाटा टाइप। और फील्ड डाटा टाइप जो होती है वो स्टोर करती है डाटा को। MS Access supports different types of data, each with a specific purpose. The data type determines the kind of the values that users can store in any given field. Each field can store data consisting of only a single data type. Here are some of the most common data types. चलिए जो कॉमन डाटा टाइप्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं जो यहाँ हमें टेबल में दिया गया है। सबसे पहले है टाइप ऑफ डाटा, शॉर्ट टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन है उसका। दिस डाटा टाइप इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट और कॉम्बिनेशंस ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इंक्लूडिंग नंबर्स दैट डू नॉट रिक्वायर कैलकुलेटिंग, दैट इज फोन नंबर्स। बच्चों, इस तरीके का जो डाटा टाइप होता है वो टेक्स्ट, उसकी कॉम्बिनेशंस, नंबर्स, जिसमें वो नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं जिन्हें कैलकुलेट नहीं किया जाता। एग्जाम्पल में है फ़ोन नंबर्स, इसका साइज होता है अप टू 225 कैरेक्टर्स। फिर आता है लॉन्ग टेक्स्ट. दिस डाटा टाइप इज़ यूज फॉर लेंदी टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स. इस डाटा टाइप का इस्तेमाल लेंदी टेक्स्ट में किया जाता है अप टू 63,999 कैरेक्टर्स. नंबर. This data type stores numeric data for mathematical calculations. Mathematical calculation के लिए numeric data ये store करता है up to 16 bytes. Date or time. This data type stores information like date of 8 bytes birth, date of joining, living time, etc. 8 bytes. Currency. This data type stores currency data that can be 8 bytes used for calculation. इस तरीके का डाटा टाइप जो होता है वो करेंसी डाटा स्टोर करके रखता है 8 bytes. ऑटो नंबर. दिस डाटा टाइप स्टोर्स अ सिक्वेंशियल नंबर ऑफ ईच रिकॉर्ड. सीक्वेंस में जो नंबर होता है रिकॉर्ड का वो ये डाटा टाइप स्टोर करके रखता है 4 bytes. Yes or no? This data type is used to store only one of the two possible values such as yes, no or true or false. यही दोनों चीज़ें ये स्टोर करके रखता है जो दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, either yes or no, either true or false. 1 byte. OLE objects. This data type can store pictures, audio, video or other BLOBs, binary large objects, up to about 2 GB. Hyperlink. This data type can store text or combinations of text and numbers as text and used as a hyperlink address. Up to 1 GB each part of a hyperlink data type can contain up to 2048 characters. Attachment. This data type allows us to attach images, spread files, documents, charts and other types of supported files to the records in our database, much similar to the manner we attach files to email. इस तरीके का जो डाटा टाइप होता है वो अलाउ करता है इमेज को अटैच करने के लिए, स्प्रेडशीट फाइल्स को अटैच करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स, चार्ट्स और अदर तरीके के जो सपोर्टिंग फाइल्स होते हैं उन्हें अटैच करने के लिए अप टू अबाउट 2 GB. Calculated.
This data type is used to create a field that displays a value which is calculated from other data of the same table, dependent on the data type of the using field. Lookup wizard. This data type helps us to create a field whose value are chosen from the values in another table, query or list of values. By default, Access sets lookup fields to the number data type, dependent on the data type of the lookup field. तो बच्चों अब आ जाते हैं field properties पर. Every field in a table has properties and these properties define the field's characteristics and behavior. बच्चों जितने भी field होते हैं टेबल के, उनकी जो properties होती है वो और उनकी properties define करती है fields के characteristics और उनके behavior को. Each field in a table has its own set of properties that further defines the field and how it is used in database. जितने भी field होते हैं टेबल के वो अपने प्रॉपर्टीज़ को खुद ही सेट करती है, डिफाइन करती है फील्ड को और उनके डेटाबेस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसे. लेट अस नो अबाउट द सम फील्ड प्रॉपर्टीज़ विच आर एज फॉलोज. कुछ और फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें सबसे पहले है फील्ड साइज. It is used to set the number of characters needed in a text or number field. The default field size for a field with a data type of text is 255 characters. We can change this size in the range of 0 to 255 characters. हम इसके साइज को 0 to 255 characters में चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसका डाटा टाइप ही जो टेक्स्ट होता है वो होता ही 255 characters का है. फॉर्मेट. This property enables us to set the field in precise manner in which Access displays or prints the data is located in its tables. For example, if we want to display data in the long format or short format, this property enables us to set that option. Example के तौर पर अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने डाटा को लॉन्ग फॉर्मेट या किसी भी शॉर्ट फॉर्मेट में, तो ये प्रॉपर्टी उस ऑप्शन को अलाउ नहीं करता, ये इनेबल नहीं करता. Caption. It is the label for the field that we appear on forms. If you don't enter a caption, Access will use the field's name as the caption. बच्चों, कैप्शन का मतलब होता है कि आप उसे कोई नाम दे रहे हो. अगर आपने उस पर्टिकुलर फॉर्म को या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कोई कैप्शन नहीं दिया है तो वो क्या करेगा, वो फील्ड अपने हिसाब से कैप्शन देके उसे सेव कर लेगा. इनपुट मास्क. It makes data entry easier and controls the values which a user can enter into it. For example, if a user need to enter a telephone number, input mask can create the characters and structure with which we are all familiar as the user types. The number automatically assume a phone number format. बच्चों ये क्या करता है, डाटा एंट्री को ईजियर बनाता है, कंट्रोल और जो यूज़र होता है उसके हाथ में होता है. सपोज़ कीजिए अगर हमें यूज़र का नंबर अगर उसमें मांग रहा हो और हमने उसे टेलीफोन नंबर या इनपुट मास्क नहीं दिया क्रिएट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो खुद से ही कोई नंबर डालकर उसे क्रिएट कर देगा. डिफ़ॉल्ट वैल्यू. दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स टू सेव टाइम इन द डाटा एंट्री प्रोसेस. ये प्रोसेस क्या करता है, ये प्रॉपर्टी हेल्प करती है डाटा एंट्री प्रोसेस में टाइम को सेव करने के लिए. द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज ऑटोमेटिकली प्लेस्ड इन द कॉलम्स एवरी टाइम अ न्यू record is added. Validation rule. It is used to force a field entry to meet a logical test of its validity. By validation rules, we can ensure that the correct value is entered in the field. If the user makes an incorrect entry, error alerts can stop the users, provide a warning or just provide information. बच्चों ये क्या करता है, वैलिडेशन रूल्स की अगर बात करें तो ये इंश्योर करता है करेक्ट वैल्यू ही फील्ड में एंटर हो. वैलिडेशन टेक्स्ट. दिस प्रॉपर्टी इज used to define the error message that appears when an incorrect or restricted value is entered in a field with a validation rule. बच्चों ये क्या करता है, ये प्रॉपर्टी डिफाइन करता है एरर मैसेज को. जब भी कोई इनकरेक्ट रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू एंटर किया गया हो फील्ड में तो ये वैलिडेशन रूल के साथ में ये अलर्ट कर देता है. रिक्वायर्ड. दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर और नॉट अ वैल्यू मस्ट बी एंटर्ड इन द फील्ड. The default value is no.
If this property is set to yes while entering the data in a record, we must enter a value in this field. Allow zero length. It accepts a blank entry if required property is set for yes. For example, if a social security field requires data, but we don't know the social security number, we would enter a zero length text string in the field. एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों मान लीजिए कि अगर सोशल सिक्योरिटी फील्ड में डाटा रिक्वायरमेंट मांग रहा हो और हमारे पास में सोशल सिक्योरिटी नंबर ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे जीरो लेंथ टेक्स्ट स्ट्रिंग को फील्ड में. इंडेक्स्ड. It specifies whether or not we want to index the field to speed up searches and sorts performed on the field. The default value is no. जो इसका default value होगा क्या होगा बच्चों? No. Text align. It specifies the default alignment of the text within a control. ये क्या करता है? ये specify करता है default alignment को text में control के साथ में. अब आते हैं test yourself पर. Select the matching data types to assign to the appropriate field. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब आ जाते हैं creating a new table in database view. The database view enables the user to enter data without defining the structure or the data type for the table. When the data is entered in the data sheet view, the data type and the size of the field is determined automatically. जब भी डाटा को एंटर किया जाता है डाटा शीट व्यू में, तो डाटा टाइप और साइज जो है फील्ड का वो डिटरमाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली. द डाटा शीट व्यू इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू एंटर, एडिट और रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड्स. बच्चों ये डाटा शीट तब यूजफुल हो जाता है जब हम एंटर करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो या रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो. टू क्रिएट अ टेबल इन डाटा शीट व्यू, फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1, click on create tab on the ribbon. Step 2, click on table button. Access opens a new table in data sheet view. Step 3, double click on column header to create a field name. Step 4, type a name for the field. Press enter key from keyboard. Step 5, click on next column. The data type menu will appear. Select the data type for the field. Step 6, repeat steps 3 to 5 to create more fields for the table. बच्चों अगर आपको डाटा शीट व्यू टेबल क्रिएट करना हो, स्टेप 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे क्रिएट टैब में जो रिबन में दिया गया है. स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे टेबल बटन पर और एक्सेस ओपन करेंगे न्यू टेबल का डाटा शीट व्यू में. स्टेप 3 में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे कॉलम हेडर पर एक न्यू क्रिएट करने के लिए फाइल नेम के साथ में. फिर स्टेप 4 में जाएंगे, टाइप करेंगे नेम को फील्ड के और फिर प्रेस करेंगे एंटर की कीबोर्ड में. स्टेप 5 में जाएंगे, क्लिक करेंगे नेक्स्ट कॉलम में, फिर जो डाटा टाइप मेन्यू है वो अपेयर होगा, फिर सर्च करेंगे हम फील्ड में डाटा टाइप को. स्टेप 6 में जाएंगे, रिपीट करेंगे 3 to 5 और क्रिएट करेंगे टेबल्स में और मोर फील्ड्स को. अब आ जाते हैं क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इन डिजाइन व्यू. डिजाइन व्यू enable users to design and set up the database. In this view, we can set up the field names, their data types and descriptions of the tables. The design view of a table consists 2 panes. 2 panes consist करता है डिजाइन व्यू. कौन कौन सा? फील्ड, ग्रिड, पेन. This pane is used to define 3 main components, namely field name, data type and description. ये 3 main components हैं field grid pane के. Field properties pane. Field properties pane is used to set properties for the fields in the table. The properties of the fields are dependent on the data type. जो properties है fields की वो depend है data type पर. To create a table in design view, follow the given steps. Step 1, in database window, click on the create tab and select the table option in the tables group. The new table will be created in the database. Step 2, click on the view button in the views group under the home tab and choose design view from the drop down menu. Step 3, the save as dialog box appears. Define the table name and click on OK button.
Step 4. A blank table will open in the design view displaying the 3 columns named field name, data type and description. A new tab named design appears in the ribbon. Step 5. Access automatically creates a primary key and assigns it a field name. We will notice that a key symbol appears next to the field. Step 6. Enter the name for other fields in the field name columns. Press the tab key to move to the data type column. Step 7. By default, text appears in the data type column. Click on the drop down arrow that appears when we click in the data type field. Select the desired data type for the displayed list. Step 8. Press the tab key to move to the description column. In this column, we can give any comments related to the field. This is an optional step. Press the tab key again and the cursor will move to the field name column in the next row. Step 9. Repeat this process until we create all the required fields of a table and set their properties. तो बच्चों, अगर हमें क्रिएट करना है डिज़ाइन व्यू में टेबल, स्टेप 1 में जाएंगे, डेटाबेस विंडो में क्लिक करेंगे क्रिएट टैब पर, फिर सेलेक्ट करेंगे टेबल ऑप्शन को टेबल्स ग्रुप में से। अब न्यू टेबल जो क्रिएट हो चुका है डेटाबेस में, स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे व्यू बटन में जो व्यूज़ ग्रुप अंडर द होम टैब दिया गया है, चूज़ करेंगे डिज़ाइन व्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू से। स्टेप 3 में जाएंगे, सेव एज का डायलॉग बॉक्स हमें दिखेगा, फिर जो डिफाइन टेबल नेम है उस पर जाके क्लिक कर देंगे ओके के बटन पर। स्टेप 4 में जाएंगे, ब्लैंक टेबल को ओपन करेंगे, डिज़ाइन व्यू डिस्प्ले होगा जिसमें 3 कॉलम्स होंगे, फील्ड नेम, डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। फिर न्यू टैब में डिज़ाइन अपीयर होगा, रिबन का जो डिज़ाइन अपीयर नेम से होगा। स्टेप 5 में जाएंगे, अब जो एक्सेस है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है प्राइमरी की में, फाइल नेम असाइन हो चुका है। हम देखेंगे, नोटिस कर सकेंगे कि जो की सिंबल है वो फील्ड के नेक्स्ट में अपीयर हो रहा है, दिख रहा है। स्टेप 6 में जाएंगे, एंटर करेंगे हम नाम को फील्ड नेम कॉलम में, प्रेस करेंगे टैब की को और मूव करेंगे डाटा टाइप कॉलम को। स्टेप 7 में जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अपीयर होगा डाटा टाइप कॉलम में, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो में, उसके बाद हमें अपीयर होगा उस पर डाटा टाइप फील्ड पर हम क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे डिज़ायर डाटा टाइप को जो डिस्प्ले में लिस्ट में होगा। स्टेप 8 में जाएंगे, प्रेस करेंगे टैब की को, मूव करेंगे डिस्क्रिप्शन कॉलम में, फिर इस कॉलम में हम कोई भी कमेंट्स फील्ड से रिलेटेड दे सकते हैं, हालांकि ये एक ऑप्शनल स्टेप है बच्चों। फिर प्रेस करेंगे टैब की को दोबारा से और फिर कर्सर को मूव करेंगे फील्ड नेम पर नेक्स्ट रो में। स्टेप 9 में जाएंगे और इस पूरे प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारे प्रॉपर्टीज़ में सारे टेबल सेट ना हो जाए। अब आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर। प्राइमरी की इज़ अ की विच इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स यूनिकली। In a table, there can be only one primary key. It does not allow to enter the duplicate values in the field. बच्चों, प्राइमरी की वो की है जिसका इस्तेमाल रिकॉर्ड्स के यूनिकली जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, लेकिन इस टेबल में यहाँ पर केवल एक ही प्राइमरी की है, तो ये अलाउ नहीं करता है डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फील्ड में बनाने के लिए। मॉडिफाइंग टेबल डिज़ाइन। If we want to change the table design after creating a table, we can do this in both the views, that is database sheet view and design view. Let us know how we can modify table in data sheet view. बच्चों, अगर हमने टेबल डिज़ाइन को बना लिया है और उसको बनाने के बाद में अगर हमें उनमें कोई चेंजेस चाहिए तो हम उसे डेट शीट व्यू या डिज़ाइन व्यू में उसे चेंज कर सकते हैं। उसे मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले हम डाटा शीट व्यू में जाएंगे। Inserting a field. To insert the field in data sheet view, follow the given steps. Step 1. Right click the field where we want to insert a new field. A shortcut menu will appear. Step 2. Click on the insert field option. A new field, field 1 will be inserted. Step 3. Change the name of this field as we want and enter the desired data in this field.
बच्चों उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे उस फील्ड पर जहां हम न्यू फील्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं। शॉर्टकट मेन्यू हमें अपीयर होगा। स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट फील्ड ऑप्शन पर, एक न्यू फील्ड फील्ड 1 नाम से हमें इंसर्ट हो जाएगा। स्टेप 3 में जाएंगे, अब उसके नाम को हम जिस भी नाम से उसे सेव करना चाहते हैं वो नाम देकर उसे सेव कर देंगे। मूविंग अ फील्ड, समटाइम्स we may have to move or change the field location. To move or change the field location, follow the given steps. Step 1. Select the field that we want to move. Take the mouse pointer on the field. Step 2. Click and start dragging left or right in the desired location. While our mouse is moving, a thick vertical line will guide us. Step 3. Once the vertical line is positioned at the desired location, release the mouse button. The selected field will move to new location in the table. बच्चों अगर हम अपने फील्ड लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। स्टेप 1 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे उस फील्ड को जिसे हम मूव करना चाहते हैं, फिर हम अपने माउस पॉइंटर से उसको उस फील्ड पर ले जाएंगे। स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे और स्टार्ट करेंगे ड्रैग करना लेफ्ट और राइट हमारे डिज़ायर्ड लोकेशन जहाँ भी हम उसे रखना चाहते हैं। जब हम अपने माउस को मूव कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि एक थिक वर्टिकल लाइन हमें गाइड कर रही है कि हमें उसे कहाँ सेव करना चाहिए। स्टेप 3 में जाएंगे, फिर जब एक वर्टिकल लाइन पोजीशनड एक डिज़ायर लोकेशन पर पोजीशन में आ जाए तो हम माउस पॉइंट को बटन को रिलीज कर देंगे। अब जो सिलेक्टेड फील्ड था वो न्यू लोकेशन टेबल पर जा चुका है। चेंजिंग द कॉलम विड्थ, टू चेंज द कॉलम विड्थ follow the given steps. Step 1. Take the mouse pointer on the right border of a column header. The mouse pointer changes into a horizontal double arrow crossed by a vertical line. Step 2. Now double click on it. The column would be resized to the widest possible size of that type. Or right click on the column header. A shortcut menu appear. Select the field width option. A column width dialog box appears. Type the desired width in column width text box. बच्चों क्या करना है हमें, अगर हमें कॉलम के विड्थ को चेंज करना है, स्टेप 1 में जाएंगे, माउस पॉइंटर को लेंगे और राइट बॉर्डर में चले जाएंगे कॉलम हेडर के। उसके बाद हमारा जो माउस पॉइंटर है वो चेंज होता रहेगा हॉरिजॉन्टल डबल एरो में और वर्टिकल लाइन में। स्टेप 2 में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और फिर जो कॉलम है हमारा वो रिसाइज हो जाएगा और उसका जो विडेस्ट पॉसिबल साइज है वो से हम रिसाइज कर देंगे। या फिर हम राइट क्लिक कर सकते हैं कॉलम हेडर पर, ये एक शॉर्टकट मेन्यू हमें अपीयर होगा जिसमें हम फील्ड विड्थ के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉलम विड्थ जो है वो डायलॉग बॉक्स हमें अपीयर होगा। अब हम वहाँ पर जो भी हमारा डिज़ायर्ड विड्थ है कॉलम विड्थ टेक्स्ट बॉक्स में हम उसे फिल कर देंगे। रीनेमिंग अ फील्ड, we can rename a field at any time from the table. To rename the field, follow the given steps. अगर आप अपने किसी भी फील्ड को रीनेम करना चाहते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं। स्टेप 1. Take the mouse pointer to a field that we want to rename. Step 2. Right click on that field. A shortcut menu will appear. Step 3. Click on the rename field option and change the field name. बच्चों अगर हम रीनेम करना चाहते हैं, स्टेप 1 में जाएंगे, माउस पॉइंटर को लेंगे, हम उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम रीनेम करना चाहते हैं। स्टेप 2 में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे फील्ड के, अब एक शॉर्टकट मेन्यू हमें दिखेगा। स्टेप 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे रीनेम फील्ड के ऑप्शन पर और वहाँ पर जाकर हम अपना फाइल नेम चेंज कर देंगे। डिलीटिंग अ फील्ड, वी कैन डिलीट एनी फील्ड फ्रॉम आवर टेबल. We should be sure about deleting the field because it is not possible to undo a field deletion. बच्चों हम अपने किसी भी फील्ड को आसानी से किसी भी उसके टेबल से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने से पहले हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमें वो फील्ड फिर दोबारा नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हमने उसे डिलीट कर दिया तो वापस से वो अंडो नहीं हो सकता। टू डिलीट अ फील्ड फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1. राइट क्लिक द फील्ड दैट वी वांट टू डिलीट. A shortcut menu will appear. Step 2. Click on the delete field option. The column and all its data are deleted. Or select the data field that we want to delete.
Click on the delete button from the add and delete group under the fields tab. डिलीट करने के लिए फील्ड को स्टेप 1 में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे उस फील्ड पर जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं, फिर एक शॉर्टकट मेन्यू हमें दिखेगा। स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे डिलीट फील्ड ऑप्शन पर और फिर जो हमारा कॉलम है वो अब डिलीट हो चुका है। या इसके अलावा हम सेलेक्ट करेंगे उस फील्ड को जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं, फिर डिलीट के बटन को जाकर हम क्लिक कर देंगे जो कि है ऐड एंड डिलीट ग्रुप से फील्ड टैब के। हमारा जो फील्ड जिसे हम डिलीट करना चाहते थे अब डिलीट हो चुका है। एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ टेबल। After creating the table in design view, we can add records to it in the data sheet view. To add record in the student table, follow the given steps. Step 1. Open the table student record in the data sheet view. Step 2. Type the roll number in the first roll number field. Step 3. Type the following entries by pressing the tab key after each one to complete the record. Step 4. After typing the last entry, press the tab key. The insertion point comes to the roll number field in the second row. Step 5. Add the remaining records by repeating the steps 2 to 4. Step 6. After completing data entry, click on Save button to save the changes. Access saves the table and we can see the name of the table in navigation pane. बच्चों हमें अगर जो हमारा टेबल है अगर हम उसे में कुछ ऐड रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसके लिए स्टेप 1 में जाएंगे, ओपन करेंगे टेबल स्टूडेंट रिकॉर्ड जो कि डेटाबेस व्यू में है, डाटा शीट व्यू में है। स्टेप 2 में जाएंगे, टाइप करेंगे रोल नंबर फर्स्ट रोल नंबर फील्ड में। स्टेप 3 में जाएंगे, फिर टाइप करेंगे एंट्रीज टैब की को प्रेस करके हमारे रिकॉर्ड को कंप्लीट करने के बाद में। स्टेप 4 में जाएंगे, उसके बाद टाइप करने के बाद में हमारी लास्ट एंट्री हम प्रेस कर देंगे टैब की को और फिर जो इंसर्शन पॉइंट है वो आ जाएगा रोल नंबर फील्ड सेकंड रो में। स्टेप 5 में जाएंगे, ऐड करेंगे हमारे रिमेनिंग रिकॉर्ड्स को, रिपीट करेंगे स्टेप 2 to 4 को। स्टेप 6 में जाएंगे और उसके बाद जब हमारा जो डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगा, क्लिक कर देंगे सेव बटन को, जो सेव है वो चेंज हो जाएगा। फिर एक्सेस जो है सेव का टेबल का अब हम देख सकते हैं कि नेविगेशन पेन में अब जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो चेंज हो चुका है। रीस्टार्ट इन शॉर्ट, MS Access in the Relational Database Management System software. The software program that allows us to create, update, access and query a database is known as DBMS. DBMS can be based on different model. A database is the main object of the database where the actual data is stored. Tables consist of columns, fields and rows record that intersect to form cells of holding data. A database query is a request to access from a database to manipulate it or retrieve it. We use the data sheet view to enter data in the table. In the design view of the table, we can enter the field names, their data types and description. We can modify the table's design in both views, data sheet view and design view. बच्चों अब आ जाते हैं टेस्ट योर ब्रेन पर। डाक इन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। MS Access is a dash software, spreadsheet, database, word processor, animation। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। बच्चों यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसमें आपको करेक्ट वर्ड को फिल करना है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। राइट T for true and F for false statements. DBMS can be based on different models. True, false। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर की मदद से इसे खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। इन द लैब लेबल द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ MS Access। MS Access के जो वर्ड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन्हें यहाँ पर लेबल कीजिए, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। फन टाइम एक्टिविटी। Mr. Rajat is working in iron factory as a database administrative. For some time, many crises are going on in the company. Since 6 months, the company is not able to pay salary to its employees properly. Recently,
Few of the employees have left the company and now he wants to update the database and delete the records of employees who left. Is it possible to delete only a few records from a table? How? बच्चों, मिस्टर रजत जो है वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं जो एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव है। कुछ टाइम से उस कंपनी में क्राइसिस चल रहे हैं, इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में इनेबल हैं। ऐसे में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने जो है वो जॉब छोड़ दिया है, कंपनी छोड़ दी है। तो अब रजत क्या चाहते हैं कि वो अपना डेटाबेस को अपडेट करना चाहते हैं और रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं जो लोग छोड़ के चले गए हैं। ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि टेबल में से कुछ ही चीज़ों को, कुछ ही रिकॉर्ड्स को डिलीट कर पाएँ, और कैसे, बताइए। इसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा है बच्चों। आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर